Okay. Okay, ma'am. So nth order derivative of product of two functions. We have two functions fx and gx. We have product, and using Leibniz theorem, you will find nth order derivative of this. Okay. So it is NC0 combination rule we are using. NC0 f to the power n x into gx plus NC1. This is nth order derivative of fx. Okay. And now this is n minus 1th order derivative of f into first order derivative of gx. Okay, ma'am. Got it? Plus NC2 n minus 2 order of fx into second order of gx, second order derivative of gx, plus up to so on. If we take product of two function in the form of fx then we use as this is Leibniz theorem or Leibniz rule. If we have product of two function as u and v, okay, or in a seed of fx gx, if we are using u and v are the function of x, then we take nc0 into un, nth order derivative, okay, into v1, first order, into v, plus nc1 u n minus 2 means n minus 1th order derivative of u into v1 plus nc2 into u n minus 2 order derivative of u into second order derivative of v plus up to so on. This is formula. Okay. Now Okay, let ma'am. us do question. So you have question. First question we have. You remember this combination rule because we need a combination rule. Combination rule formula, you know. If you don't know, then you can tell me, I'll explain you. No, ma'am. Okay, I'm telling you. Factorial value, you know. Yes, ma'am. Okay, so n combination formula, let us know first. Combination formula. If you have NCR, then we take factorial n here or factorial r here into n minus r factorial. Okay, this is formula.
So in Leibniz theorem, we have NC0, NC1, NC2, and up to so on as we need. Okay. And accordingly, we use this formula. So let us do question. Dn, or you have nth order derivative in this form. They can give you in this form also. Nth order derivative of x cube into e to the power x. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स. अब हम अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है. ओके, तो इसमें हम लेबनिज थ्योरम ऑब्वियसली यूज करेंगे. तो हम u किसको लेंगे और e किसको लेंगे ये डिसाइड करना है. ठीक है, तो हम इसमें u और v कैसे डिसाइड करेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन सून ही जीरो होने वाला है उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे. या u v ले लो या एफ एक्स जी एक्स ले लो. ठीक है, तो e टू द पावर x का तो हमेशा e टू द पावर x ही आता रहेगा, हम चाहे कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करें. बट एक्स क्यू का सून ही जीरो हो जाएगा. ओके, तो इसका एक्सपेंशन पहले लेबनिज थ्योरम से लिख लेते हैं, उसके बाद फिर वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. ओके, सो बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम. dn over dxn of x cube into e to the power x. तो हम ऑब्वियसली u इसको ले लेंगे क्योंकि ये तो रिपीट ही होता रहेगा. v इसको ले लेंगे. ठीक है, इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं. क्योंकि प्रोडक्ट है तो ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं. ओके, क्योंकि क्यों कर सकते हैं प्रोडक्ट में चेंज, 2 into 3 करें या फिर 3 into 2 करें. प्रोडक्ट में अगर हम ऑर्डर भी चेंज करते हैं तो भी वैल्यू सेम रहती है. ओके, इसलिए हमने ऑर्डर चेंज कर लिया तो भी वैल्यू सेम ही है. अब हम लेबनिज थ्योरम यूज कर सकते हैं. NC0 into UN. This is U and this is V. ओके, अगर हम ये लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं तो इंटू V प्लस NC1 into UN minus 1 into V1, first order derivative of V, and NC2 into UN minus 2 into V2 plus NC3 into UN minus 3 into V3 प्लस अप टू सो ऑन. अब देखते हैं कि कहाँ तक नॉन जीरो आता है, वहीं तक हम फाइंड करेंगे. ओके, u है e टू द पावर x एंड v है x क्यूब. चलो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका. इसका तो हमें एनर डेरिवेटिव फाइंड करना है. डी यू ओवर डी, सॉरी, डी एक्स एन, डी एन यू ओवर डी एक्स एन यू. तो ये ऑलवेज e टू द पावर x ही रहेगा, चाहे ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो. इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू एन भी लिख सकते हैं. अगर हम यू एन माइनस वन यानी कि हम कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करें e टू द पावर x का, वो सेम एज e टू द पावर x ही रहता है. ओके, ऐसे ही n-2 का सिमिलरली लिख कर सकते हैं. उसको सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके बाद के जो भी हैं वो ले सकते हो. कि और डायरेक्ट UN-2 वगैरह ले सकते हो, ये सेम ही आने हैं. ओके,
तो पहले v को देख लेते हैं, कितने ऑर्डर तक डेरिवेटिव नॉन जीरो आते हैं उतने ही फाइंड करेंगे। v1 क्या होगा, d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आ गया पावर रूल से 3x² क्योंकि पावर को पहले लिखते हैं, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x² आएगा, ये v1। अब v2 करेंगे तो d ओवर डी एक्स ऑफ 3x²। तो ये आ गया 3 × 2, पावर को पहले लिखा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो पावर 1 बचेगी, और 1 पावर को हम लिखते नहीं है v2। तो v2 आ गया 6x। और v3 हम फाइंड कर लें, हाँ। तो v3 इज d ओवर डी एक्स ऑफ 6x, दिस इज इक्वल टू 6। ओके, v3। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि कहाँ तक हमें ये फाइंड करने हैं। तो n3 तक और कर लें, n-3 तक, सॉरी, और कर लें। अब सभी की वैल्यू इस लेबनिज थ्योरम में पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पर पुट कर देंगे। हाँ, साथ में हमें NC0, NC1, NC2, NC3 की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको भी फाइंड कर लेते हैं। ओके, NC0, NC1, NC2 एंड NC3 तक है ये, NC3 तक। चलो फाइंड करें इसको। तो NC0 फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल 0 इंटू n-0 और फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल n ही रहा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये फैक्टोरियल n इधर आ गया तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। जब भी यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, n हो, 2 हो, 1 हो, कुछ भी वैल्यू हो यहाँ पर n की जगह पर, और नीचे यहाँ 0 है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। ओके, NC1, तो ये हो गया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल और नीचे है n-1 फैक्टोरियल। तो कैंसिल करने के लिए हम इसको ओपन कर लेंगे, n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये रूल है फैक्टोरियल n का, कि उसको n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। नीचे भी क्या है, n-1 फैक्टोरियल। तो इससे कैंसिल हो गया, ये n आ गया। इसकी ट्रिक क्या है कि हर बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर n-1 है, या मान लो 5-1 n की जगह कोई और भी नंबर है, जो भी नंबर यहाँ होगा, अगर नीचे 1 है, ठीक है, नीचे अगर 1 है और जो भी नंबर यहाँ पर है, तो वो सेम एज यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5C1 होता तो यहाँ 5 आ जाता, अगर 10C1 होता तो यहाँ पे 10 आ जाता रिजल्ट। ओके, तो ये ट्रिक है, ये नेसेसरी नहीं है कि हर बार तुम्हें फाइंड ही करना है, ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो ये NC1 की वैल्यू हो गई। गॉट इट? अब NC2 और NC3 की और फाइंड करनी है, उसको समझ लो। NC2, तो यहाँ आ गया ये फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n-2। अब इसको ये फैक्टोरियल n ओवर 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, और नीचे क्या है, n-2 ये फैक्टोरियल, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में n-2 फैक्टोरियल चाहिए, तब भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इसको फैक्टोरियल n को इस तरह से लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 1 ये 2 ही हुआ, और साथ में क्या है, n-2 फैक्टोरियल, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारे पास n इंटू n-1/2, या NC2। अब NC3 और फाइंड कर लेते हैं। मैम इसमें NC3 तक ही फाइंड करेंगे ना? हाँ, मैम इसमें NC3 तक ही फाइंड करेंगे ना हम? हाँ, क्योंकि उसके बाद टर्म 0 हो जाएंगी, क्योंकि हमारा ये V3 तक ही है, उसके बाद जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, तो इसके आगे टर्म आएंगी नहीं। ओके ओके, मैम।
इसलिए। मैम मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक चीज भेजी है मैम, इसके बारे में प्लीज वो देखना। क्या? मैम मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक चीज भेजी है इससे रिलेटेड, आप वो देखना। एक मिनट में देखती हूँ अभी। नहीं, इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हमें तो यस। nth फाइंड करना है। ओके। ओके मैम। क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल जो हम यूज कर रहे हैं ये तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना, हमें तो nth ऑर्डर करना है। यस मैम। इसलिए nth ऑर्डर के प्रोडक्ट अगर टू टू फंक्शन का गिवन है और nth ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमें लेबनिज थ्योरम ही यूज करनी पड़ेगी। इसके आगे की टर्म जीरो हो जाएंगी क्योंकि v3 के बाद अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो है। ठीक है। यस मैम। और जीरो से कुछ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसलिए सिर्फ यहीं तक करना है, इसलिए हम NC3 तक ही फाइंड करेंगे। ओके। ओके मैम। जयति के सिलेबस में है नहीं है ना ये लेबनिज थ्योरम, आई थिंक, इसलिए वो चली गई। उसका सक्सेसिव तक तो है लेकिन एक्चुअली क्या है, उसको गेट के लिए करना है, उसका डिफरेंट है। तो कुछ टॉपिक्स तुम लोगों के कॉमन है। ओके मैम। NC3, तो फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल 3 × n - 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल 3। और एक सेकेंड, इसको फैक्टोरियल n को हम n - 3 फैक्टोरियल तक लेके जाते हैं। तो इन n × n - 1 × n - 2 × n - 3 फैक्टोरियल। n - 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। और फैक्टोरियल 3 को भी ओपन कर देते हैं, तो फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 3 × 2 × 1, यस मैम। तो 6 हो गया। तो हमारा ऊपर बचा n × n - 1 × n - 2। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं हम। ठीक है। तो चलो वैल्यू लगा देते हैं। लेबनिज थ्योरम में तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ किसका फाइंड कर रहे थे हम, x³ × e⁻x का। राइट। तो NC0 की वैल्यू क्या आ गई थी, 1 आ गई थी। = 1 इंटू nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, तो e⁻x ही आएगा। और v1 क्या था, × x³ प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या आई थी NC1 की, 1, सॉरी n। और u n - 1 ऑर्डर डेरिवेटिव इसका e⁻x ही रहेगा। और इसको इनटू में ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन साइन के अलावा ऐसे भी लिख सकते हो डॉट के थ्रू। इनटू इसका जो डेरिवेटिव था वो 3x² था, प्लस NC2 क्या था, n × n - 1/2 इंटू 6x प्लस NC3 क्या है, n × n - 1 × n - 2/6 हाँ, यहाँ पे e⁻x भी है क्योंकि n - 2 ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, ये आ गया, इंटू e⁻x इंटू 6, ये v3। ठीक है। v3 की वैल्यू क्या आ गई थी, क्योंकि 6 आ गई थी, ये रही। ठीक है। ये हमने लगा दी क्योंकि u के तो डेरिवेटिव वही रहेंगे। यस मैम। ओके। ओके मैम। हाँ, ये 6 कैंसिल हो जाएगा। और ये आ गया x × e⁻x × x³ प्लस, या फिर हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं x³ को।
अभी हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद। ओके, क्योंकि डिफरेंशिएशन का ये लास्ट पार्ट था, और जो भी तुम में से किसी के भी क्वेश्चंस हो वो कभी पूछ सकते हो, अगर डिफरेंशिएशन में से किसी के बचते हैं तो। और 3 ए वाला है, ये यहाँ लिख देते हैं, इंटू ई टू द। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हाँ, क्या? मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? अभी हम कौन सा तो टॉपिक कर रहे हैं इसके ये बाद? तो सक्सेसिव का लास्ट पार्ट बचा है, अभी हम दोनों। एक्चुअली क्या है कि तुम्हारा डायरेक्ट नहीं है इंटीग्रेशन, बट जो डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे वो बिना इंटीग्रेशन का नहीं होगा, तो हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटर है कि तुम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लो, ठीक है। ओके मैम, ओके। हाँ, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बिना नहीं होने वाला, इसलिए तो मैं करना है। ओके, ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो +3 into n इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, और एक्स को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर सिर्फ n into n-1 into n-2 है, इंटू ई टू द पावर एक्स है। ई टू द पावर एक्स अभी में कॉमन है, तो इसको आउटसाइड लिख के इनसाइड जो भी टर्म्स बची हुई हैं वो लिख सकते हैं। 3n इंटू या x² x² +3n इंटू n-1 इंटू एक्स प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2। ठीक है, ये है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, ओके मैम। अब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। अगर तुम्हारे फर्दर क्वेश्चन अगर कैलकुलस इसमें डिफरेंशिएशन में मिलते हैं तुम्हें फर्दर, तो उनको बाद में भी पूछ सकते हो। ओके, क्योंकि अभी यही क्वेश्चंस हैं, तो हमने यही तक कर लिए। और इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है, जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। लेट fx, कैपिटल fx is derivative of fx। इट मीन्स कि अगर हम fx को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये कैपिटल fx, ठीक है, यानी कैपिटल fx क्या इसका डेरिवेटिव है। तो अगर हम कैपिटल fx को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, fx रिवर्स, ठीक है। और प्लस सी इसलिए क्योंकि ये डिफरेंशिएट करेंगे फिर से अगेन इसको, तो फिर से हमें ये मिल जाएगा और सी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक लिमिट नहीं होती तब तक हम हर एक इंटीग्रेशन में क्या है, ये सी ऐड करते हैं। ओके, तो ये एक दूसरे के रिवर्स है, जस्ट अपोजिट है। अब इनके हम फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट, ये सिंबल है देखो ये, और साथ में ये dx, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। उसमें क्या था, हम जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे कांस्टेंट का तो वो 0 था, और यहां हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साथ में x आ जाएगा एंड प्लस सी। क्यों आएगा ये, कि अगर मान लो हम के एक्स प्लस सी का फिर से डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, के साथ जो x है उसका तो 1 हो गया और सी का हो गया 0, तो अगेन के मिल गया।
ठीक है, के का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब आते हैं हम सेकेंड फॉर्मूले पर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो टू है ये कांस्टेंट है। 1/2 एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन करें हम, इस पूरे का डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, तो क्या आएगा, कोई पावर रूल से 2x आ जाएगा, और बाई 2 पहले से ही है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या आ गया, x आ गया। यानी कि x को डिफरेंट इंटीग्रेट किया तो ये आ गया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से हमें x मिल जाएगा, क्योंकि c का तो 0 होना है। क्लियर? अब मैं ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें फॉर्मूलाज बता देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे पावर को, यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं इससे। ठीक है, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पर 1 ऐड करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे अभी सभी फॉर्मूलाज के। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का ऑलवेज डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, e टू द पावर x ही रहेगा। ओके, और नेक्स्ट है, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी है ना हमारे में, ठीक है। नेक्स्ट है a टू द पावर x, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इज इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन log e, उसमें मल्टीप्लाई करते थे log a, यहाँ इससे डिवाइड कर देते हैं, और प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस सी। और नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx इज इक्वल टू sec x प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू cosec माइनस cosec x प्लस सी। ये मेन फॉर्मूलाज हैं। ओके,
अब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम्म, चलो सभी को यूज करते हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है। इंटीग्रेशन है ये x⁵। हाँ, एक फॉर्मूला रहता है जो लॉग, जिसका मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, 12th फॉर्मूला इधर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x, तो 1/x का डिफरेंशिएशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। और ये हो गया x⁵ प्लस साइन एक्स प्लस e⁵x प्लस 5⁵x प्लस sec x इंटू 10x। ये है dx, ये हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, इन सभी का। तो सबसे पहले हम इनको इस तरह से लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ प्लस साइन एक्स प्लस e⁵x प्लस 5⁵x प्लस sec x इंटू 10x। और dx को सेपरेटली ले लेंगे हम, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁵x, और साथ में dx सभी के साथ लिखना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला कंप्लीट dx के साथ ही होगा। जैसे उसमें था ना d/dx, तो दोनों को लिखना है d/dx कंप्लीट। तो ऐसे ही ये सिंबल और साथ में dx, तभी ये इंटीग्रेशन का फॉर्म जो सिंबल है वो कंप्लीट होगा। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5⁵x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx। अब यहाँ पर एक्स टू पावर वाला रूल लगाएंगे, x⁵5+1 ओवर 5+1 प्लस e⁵x का e⁵x ही रहता है, 5⁵x का 5⁵x अपॉन log 5 प्लस sec x 10x का होता है sec x। और c सिर्फ एक ही बार ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक इन सभी के साथ c ऐड करते रहेंगे, नहीं, सिर्फ लास्ट में एक बार ऐड करेंगे। मैम sec मुझे लगता है हमने साइन का छोड़ दिया है, साइन एक्स का यस इंटीग्रेशन कर, मैम। साइन एक्स का। अरे हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको भी इधर ना साइड में, यहाँ लिख देती हूँ। एक सेकेंड। ये e⁵x के बाद था ना, राइट, कोई बात नहीं, ये हम इधर लिख देते हैं इनको, हाँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5⁵x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx। इसको इधर लिख देंगे, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस 5⁵x का 5⁵x अपॉन log 5 आ गया, sec x 10x का हो जाएगा sec x, और सिर्फ एक ही बार हम c ऐड करेंगे। ये हो गया इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन। क्लियर। हम इससे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, ये सब समझने के लिए है कि हम फॉर्मूला कैसे लगा रहे हैं। अदरवाइज हम इससे ये भी लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं, और फर्दर x⁵ इसको 6 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई हमें 1 ऐड करना है। तो हमें ये दिखाना जरूरी नहीं कि 5+1 दिखाएं ही, हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, x⁵6/6 प्लस e⁵x माइनस cos x प्लस 5⁵x ओवर log 5 प्लस sec x प्लस c, ठीक है, इस तरह से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब बाकी के यस बच्चे को मैम। फॉर्मूले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इन्वॉल्व कर लेते हैं।
इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना है इसको sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec एक्स इंटू cot एक्स प्लस cos एक्स प्लस 1/x। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। sec प्लस हमारा cos एक्स स्क्वायर एक्स ही और तो sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec एक्स इंटू cot एक्स प्लस cos एक्स प्लस 1/x प्लस cosec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू अब हम यहाँ सेपरेटली दिखा सकते हैं, अदरवाइज हम एक स्टेप में भी इसको कर सकते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए हम मल्टीपल स्टेप कर रहे हैं। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec एक्स इंटू cot एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा 10x इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका आ जाएगा माइनस cosec एक्स cos एक्स का प्लस sin एक्स आ जाएगा 1/x का log एक्स और cos एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस cot एक्स प्लस c। ठीक है, ये इंटीग्रेशन क्लियर। इस तरह से हमारे सारे फॉर्मूलाज भी यूज हो गए और ये तो इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। ओके, फर्दर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है, तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। ओके। ओके मैम।